اور پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے یہ پارلیمان کی بالادستی کی، پارلیمان کی سپریمیسی کی، ہمارا کانسٹیٹیوشن کا بیسک فنڈامنٹل جو رائٹ آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، ہر ادارے کے پاس ہے، وہ اس سے اوپر اس کے بارے میں ہے. اور اس لیے کہ یہ اتنا اہمیت رکھتا ہے اور ایک قسم کا عدالت کا خود اس میں اسٹیک ہے، تو یہ اس لیے یہ فیصلہ لیا گیا جو ایک مناسب فیصلہ ہے، جو ایک اچھا فیصلہ ہے کہ اس کیس کو فل کورٹ اس کیس کو سنے اور اس کیس کے بارے میں فیصلے دیں. جہاں تک دوسرے کیسز ہیں اس پہ پھر اب چیف جسٹس صاحب کا اور کورٹ کی مرضی ہوگی کہ الیکشن کے حوالے سے فیصلے وہ ان کے اب اس کیس کے نتیجے پہ یہ پھر سامنے آئے گا کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے ابھی تک تو وہ صرف چیف جسٹس صاحب کا ثوابدید ہے. تو اگر یہ کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر بینچ کی تعیناتی کے بارے میں زیادہ کلیئر. راول صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے جو سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں کچھ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. تو اتنے دن جو گزرے ہیں اس میں کچھ ایسے کچھ سی بی ایمز نظر آئے ہیں جن کی آپ ریکوائر کر رہے تھے یا کیا ہو سکتے ہیں وہ سی بی ایمز؟ میں پریفر کرتا ہوں کہ میں جو ہم نے اس دن سی میں جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے اعتراضات ہیں اس پہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیے ہیں کہ ہمارے اعتراضات کو دور کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختیار دیا گیا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ میں پھر آپ کے سامنے ہر دن وہ شکایتیں بار رکھ لوں. تو ہم والد صاحب کو اتنا اسپیس اور اتنا موقع دے کہ ہمارا کنسرنس کو ایڈریس کیا جائے. جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے میرے خیال پہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ کس سے ہے؟ الیکشن کمیشن سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے یا سپریم کورٹ سے ہے؟ تو یہ تو کلیئر کرے دینی کس میں مسلم لیگ نواز سے ہے. اچھا مسلم پہ ہوتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالسی اس وقت کیا کہہ رہی ہے الیکشن کے بعد کب ہوں گے؟ میں اسٹیبلشمنٹ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے اور قانون کے طریقے سے وہ الیکشنز میں اپنا انشاءاللہ دیں گے. جہاں تک الیکشنز کب ہوں گے ڈیٹ اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو ڈیٹ کے حوالے سے اور اسکیڈول کے حوالے سے وہاں تو پیپلز پارٹی کا جو پوزیشن ہے وہ واضح ہے. وہاں ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونانیمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن اسکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے. تو اس مطالبہ کو تو میں ضرور الیکشن اسکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے. تو اس مطالبہ کو تو میں ضرور کون آپ کوئی میرا یہ کوئی میرا امیدواروں کو ترقیاتی فنڈ مل رہے ہیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے بند ہو گئے تھے، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ مانگ رہے ہیں؟ یا یہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کی بات نہیں ہے. جہاں تک ترقیاتی فنڈز کے منصوبے ہیں آپ کا قانون واضح ہے. جو اپروو سکیمز ہیں چاہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہو یا آپ کا صوبائی بجٹ، وفاقی بجٹ، یہاں تک کہ آپ کے ڈسٹرکٹس کے لوکل باڈیز کے بجٹ، اگر ان سکیمز کو اپروو کیے ہیں تو ان کو چلنا چاہیے. اگر صرف 90 دن کا رکاوٹ کی بات ہوتی تو پھر شاید کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مگر اس لیے کہ ہمیں ڈیٹ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ الیکشنز کب ہے تو یہ سوال کافی ایک سیریس سوال ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ صوبہ سندھ میں آپ جو بجٹڈ سکیمز ہے ان کو اجازت نہیں دیں، آپ وفاق میں آن گوئنگ سکیمز کو اس طریقے سے جو بجٹ ہے وہاں تو اجازت ہے مگر ایک صوبہ میں اجازت نہ ہو اور دوسرا اس صوبہ میں یہ اجازت ہو کہ آن گوئنگ سکیمز کیا
पास स्कीम्स किया, इंटरिम गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो नया स्कीम्स लॉन्च करे, और वह इतने मजेदार स्कीम्स लॉन्च किए जा रही कि जजेस के लिए बिला सूद कर्जा ताकि वो प्लॉट ले सके। अब मैं समझता हूं यहां इलेक्शन कमीशन पे एक मॉरल, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि लेवल प्लेइंग फील्ड डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से सारे सूबों में और वफाक में इसी तरीके से चले। अगर नो न्यू स्कीम्स तो फिर नो न्यू स्कीम्स इन पंजाब, नो न्यू स्कीम्स इन वफाक एंड नो न्यू स्कीम्स इन सिंध। अगर नो ऑनगोइंग स्कीम्स तो फिर नो ऑनगोइंग स्कीम्स इन सिंध एंड देन नो ऑनगोइंग स्कीम्स इन पंजाब। कानून तो कहता है कि ऑनगोइंग स्कीम्स का इजाजत है। मैं अवाम के जो ये मिसाइल हल निकालने वाली स्कीम्स हैं उनमें मैं कोई खुद रुकावट नहीं डालना चाह रहा हूं। इसलिए मैंने तो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं किया है कि आप वफाक के जो इकोनॉमी के, जो इन्वेस्टमेंट के जो सारे मंसूबे हैं उस पर पाबंदी लगा दे, इसलिए आपने सिंध पे डाल दिया है। मैंने तो इलेक्शन कमीशन में नहीं किया कि आप पंजाब का इंटरिम गवर्नमेंट को रोके। मैं सिर्फ अपील कर सकता हूं कि रवायत सबके लिए एक होना चाहिए। Can't hear everybody. I can't answer 4 people at the same time. Sorry. इसको कर दे दो यार, आप करो। बिलावल साहब ये बताइएगा कि 2 साल पहले हम ये देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी अब के जो इलेक्शन है इसके हवाले से प्लानिंग कर रही थी। बलोचिस्तान में भी ग्रुप बन रहे थे, लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे थे, जनूबी पंजाब में लोग आपकी तरफ आ रहे थे। एकदम ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर भी लोग आपकी तरफ आना रुक गए, जनूबी पंजाब में भी आना रुक गए, और अब इलेक्शन करीब आए हैं तो अब करप्शन चार्जेस और किसी किस्म की चीज़ें। मैं आपके सवाल का बहुत शुक्रगुजार है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो किरदार कशी और प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है मीडिया पे, जो किसी एक जमात इसमें तो बहुत माहिर है, उस पर आप ध्यान ना दें। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत की बात है, चाहे वो बलूचिस्तान, साउथ पंजाब या यहाँ पंजाब की बात हो, हर दिन कोई ना कोई शामिल हो रहा है। ना कोई कमी, ना कोई रुकावटें, ना कोई उसमें कोई मुझे मसला महसूस हो रहा है। हाँ, कोई बंदा जो बलूचिस्तान में अपने आप को पीपल्स पार्टी में शामिल कर दिया, फिर उसने अपने आप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकाल दिया। ना हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आए, लेकिन अगर कोई कहता है कि हम रोक तो नहीं सकते, उसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का कोई मसला है। इसमें ऐसे कोई हमारा एतराज नहीं है। जहाँ तक नैब के केसेस की बात है, ये सारे के सारे 100% तमाम पुराने केसेस हैं, पुराने बने हुए केसेस हैं जो चलते आ रहे हैं, जो इस इलेक्शन पे कोई असर नहीं करते। अफजाल भाई, बिल्कुल, मुझे ये एजाज़ है कि मैं मुल्क का सबसे नौजवान वज़ीर ख़ारजा रहा, और मैं अपना जो 16 महीने में जितना मुझसे हो सका, जो मैं कर सकता, मेरा थोड़ा जितना बस की बात था, मैंने मेहनत किया। और पाकिस्तान के तमाम जो एलाइज हैं, जो हिस्टोरिक एलाइज हैं, उनसे भी राब्ते बहाल किए। कुछ नए ममालिक से पहली दफ़ा वज़ीर ख़ारजा का ट्रिप हुआ, और मैं इस मेहनत पे फ़ख्र करता हूँ। आपने देखा होगा कि कल एक खबर आया था जो मेरा ख्याल में बहुत अहम है, और उसको ज़्यादा जगह हमारा मीडिया में मिलना चाहिए। हमारा जो इंटरिम फॉरेन ऑफिस है उसको ना सिर्फ नोट करना चाहिए, इस पर आप वाज़े बयान आना चाहिए कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म ने अपना पार्लियामान में इल्ज़ाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और मेरा ख्याल में दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाक़यात को इग्नोर करते रहेंगे? इट इज़ टाइम फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सेप्ट that India has become a rogue Hindutva
terrorist state that not only has conducted terrorism in Kashmir, not only have we in Pakistan caught their spies involved in terrorism in our country, but they have now been caught violating the sovereignty of a NATO member state. This is not only a violation of Canadian sovereignty. This is a violation of international law and international norms, and Pakistan, the Pakistan People's Party calls, but Pakistan should call on the international community to stand with the people of Canada and highlight the atrocities of the religio-fascist state that is today's India. Myra, IMF की शराइत की एक बड़ी वजह है। अगर आप इलेक्शन जीत कर आते हैं तो क्या आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? क्या आप IMF को फाइल कर पाएंगे महंगाई कम करने में? आपके बहुत सही सवाल है। इसलिए जो महंगाई है वो पाकिस्तान के अवाम के सबसे बड़ा इशू है। उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मेरा कौन सा मार्च चल रहा है, कैदी नंबर फला फला का आजकल का क्या ड्रामा है, या कौन कहाँ से आ रहा है। उनका मसला ये है कि महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। पाकिस्तान का अवाम को नहीं मालूम कि अगर उनको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है तो कहां से वो स्कूल फीस का बंदोबस्त किया जाए। अगर उनके बड़ों का इलाज करवाना है तो वो कैसे वो हॉस्पिटल की फीस अदा करेंगे। उनको मालूम नहीं है कि अगला जो बिजली का बिल आएगा वो पूरा कैसे होगा। और इस परेशानी में, इस दुख में, इस मुश्किल में उनको एक उम्मीद की जरूरत है, उनको एक रोड मैप की जरूरत है। उनको इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि उनको एक मौका मिलेगा आने वाले इलेक्शंस में कि वो आजादाना तरीके से अपना नुमाइंदे चुने, अवामी नुमाइंदे हो जो मुंतखब हो के इस्लामाबाद में बैठ के उनके बारे में सोचेंगे। चाहे वो IMF से मुआहिदा कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान का बजट बन रहा हो, जो हमारा सबसे मेन प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि इस महंगाई की सूरत हाल में हम आम आदमी को कैसे रिलीफ दे सकते हैं। आपका सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रखें कि IMF के शराइत के बावजूद हम अवाम को इस महंगाई से रिलीफ दिलवा सकते। मेरा कहना यह है कि ये हमारा तारीख साबित हो चुका। जब 2007-8 का हुकूमत आया था 2013 तक, दुनिया में ग्लोबल रिसेशन था। वॉशिंगटन से लेके यूके, यूरोप, पूरा दुनिया में फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हो रहे थे। तारीखी महंगाई भी था पाकिस्तान में। ज़राई किल्लत इस हद तक, मतलब आप अपना फूड इनसिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर सकते थे। आपको चीनी, चावल, गंदम को भी बाहर से मंगवाना पड़ रहा था। तो उस माहौल में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखा महंगाई था, तो हमने कहा पाकिस्तान के अवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्यों दिया? इसलिए कि जब महंगाई है, आप इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को लावारिस ना छोड़ें, उन तक माली मदद हमने पहुंचाए। जब हमने तनख्वाह में इजाफे किए, जब हमने पेंशन्स में इजाफे किए, तो क्यों किए? किसी खुशी में नहीं, सिर्फ इसलिए कि अवाम का हक था, कि उन बुजुर्गों का हक था कि जब महंगाई है तो उनका पेंशन्स में उनको इतना कुशन मिले कि वो महंगाई का मुकाबला कर सके। वैसे तनख्वाहदार तबका के लिए हमने ख्याल रखा, वैसे हमने ज़राए मईशत का ख्याल रखा। उसी मुल्क को, उसी हुकूमत में हमने एक साल के अंदर गंदम, चीनी और चावल जो आप इंपोर्ट कर रहे थे, एक साल के अंदर ही अंदर आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब किसान खुशहाल था, उनके पास आप वो अपने फसल को, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते थे, तो वो महंगाई का मुकाबला कर सकते थे। आज भी आपको इसी किस्म की अवाम दोस्त की हुकूमत की जरूरत है, जो पहचानती है कि महंगाई तो है, मगर इस महंगाई को अपने अवाम से हम कैसे वो तहफ़्फ़ुज़ दिला सकते हैं, कैसे वो ताकत दिलवा सकते हैं कि इस मुश्किल वक्त में वो हम सब मिल के
इस मुआशरी बहरान का मुकाबला। वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ। एक तो आप उनके इस्तेकबाल के लिए जाएंगे, नंबर 2 उनके ऊपर सजाएं हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि उन्हें जो सजाएं थी उनका तो मौक़िफ़ है कि वो तमाम सजाएं खत्म हो जानी चाहिए और वो बेबुनियाद है। आप उनके इस स्टांस को किस तरह देखते हैं? ये दोनों चीज़ों पे एड्रेस कीजिए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बहुत पुराना मुतालबा था कि मियाँ साहब वापस आए। तो अब अगर मियाँ साहब ने अपना वापसी का डेट ऐलान किया है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको वेलकम करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिल्कुल मियाँ साहब वापस आए। जहाँ तक केसेस के सवाल हैं, हम भी अपने केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। आई एम श्योर कि मियाँ साहब अपने केसेस को फेस करने के लिए। आखिरी सवाल आपने कल सुनीना साहिबा की फायदीसा की मिसिस की उनके साथ ओथ की तकरीब में खड़े होने को बड़ा अप्रिशिएट किया है और उनकी कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज किया है। क्या नुसरत भट्टो की कुर्बानियां कम हैं? बेनजीर भट्टो शहीद की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां कम है? उन्हें क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता दुनिया में? बिल्कुल रिकॉग्नाइज किया जाता है, कोई कंपटीशन तो नहीं है भाई। सब मादरे जमहूरियत मोहतरम बेगम नुसरत भट्टो को और शहीद मोहतरमा बेनजीर भट्टो को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी जिद्दोजहद की वजह से, उनकी स्ट्रगल की वजह से हम वो कल सीन्स देख रहे थे कि एक जज साहब जब वो अपना ओथ ले रहा है तो वुमेन्स एम्पावरमेंट और वुमेन्स की हैसियत हमारा सोसाइटी में अब इतना प्रोग्रेस किया गया है कि वो साथ ओथ ले लेते हैं। तो आई थिंक अच्छी की बात है। लास्ट क्वेश्चन। आपने जो मुस्लिम लीग नून से मुकाबला किया है, लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा ही मजा का केस है, क्या ये समझ लिया जाए कि उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए इक़्तिदार में आने के लिए? क्या ये वजाहत करेगा जो इक़्तिदार में नहीं है, जिसका कोई तल्लुक नहीं, उसके लेवल प्लेइंग फील्ड का अंतर क्यों और किस तरह का? और इसके साथ एक सवाल ये भी ऐड करना प्लीज कि तमाम सियासी आप नून लीग की पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें आपस में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए तो लड़ रही हैं, क्या रोड मैप इकट्ठा नहीं कर सकते कि इलेक्शन करवाए जाएं? बेहतर तो यही होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ मगर तमाम जो PDM के इत्तेहादी थे उनके साथ इंगेज किया जाता, इन इश्यूज को एड्रेस किए जाते ताकि इस सूरत हाल में हम ना पहुंचते कि 16 महीना का साथ गुजारने के बाद हम इस पोजीशन में होते हैं कि इस किस्म की शिकायतें आपके सामने रखते। जहाँ तक नून लीग से एतराज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में, अगर नून लीग ने मैनेज किया, बंदोबस्त किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो फिर मैं शिकायत उन्हीं के खिलाफ करूंगा। अगर किसी और ने किया होगा तो फिर मैं वो किसी और का नाम ले रहा होता। मगर मैं स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड के एतराज़ात है वो एक सियासी जमात के हवाले से है। थैंक यू। नवाज शरीफ वापस आए, पीपल्स पार्टी खुशामदीद कहेगी। हम अपने केसेस का सामना करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं कि कैदी नंबर फ्ला का कौन सा ड्रामा चल रहा है, अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। बिलावल की जानिब से कहा गया भारत बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन चुका है।